Hello students, how are you? Myself Pravat Behra, your chemistry teacher. Today we are going to discuss one of the important topic, that is none other than the molecular and empirical formula, right? So we will discuss how to find empirical formula if the percentage composition by weight of the element is given. हमको कौन देइछि परसेंटेज कंपोजिशन देइछि एलिमेंट रो, आमे से परसेंटेज कंपोजिशन को यूज करके कौन करिबा ना वी विल बी एबल टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। आ एम्पिरिकल फार्मूला रु पुणी आमे मॉलिक्यूलर फार्मूला आ मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी आ किछि किछि छोट छोट टॉपिक जे में कवर करबा जाउछि। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। So our topic is empirical and molecular formula today, right? First, what do you mean by molecular formula? Before going to discuss the empirical formula, so what do you mean by molecular formula? Molecular formula represents the exact number of atoms present in the molecule. What does it represent? It represents the exact number of atoms present in the molecule. Suppose you will take glucose, right? You will take glucose. So what is the formula of glucose? That is C6H12O6. Okay, so we can say that in glucose 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen are present. That is the molecular formula. Suppose ethane, what is the formula of ethane? C2H6. So ethane molecule contains 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen, that is ethane. So it represents the exact number of atoms. जेतिक atom present अच्छे compound रे molecule exactly same atom को हमें represent करछे. So that is the molecular formula, right? अच्छा, so empirical formula कौन? ना empirical formula which expresses the smallest whole number ratio, simplest whole number ratio. ता माने जहाँ भी atoms अच्छी atom रा हमें simplest whole number ratio of the constituent atoms within the molecule, right? That means आमे यदि ग्लूकोज नेले, सो ग्लूकोज रे अच्छी 6:12:6, that is कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6:12:6, तार यदि सिंपलेस्ट रेशियो नबा, सो व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट रेशियो? 6:12:6, that is 1:2:1. So what is the empirical formula of glucose? CH2O. This is the empirical formula of glucose. Similarly आमे इथेन नेचे, इथेन कौन अच्छी C2H6. So what is the simplest ratio? That is 2:6. So 1:3. So it is carbon and hydrogen. So it is CH3. This is the empirical formula of ethane. Similarly हमें hydrogen peroxide नवा, hydrogen peroxide formula ला H2O2. What is its empirical formula? Empirical formula is HO. Right, its empirical formula is HO. So बुझी पल्लो? अच्छा, ताले आमे जदि empirical formula नौचे, so empirical formula यूज कौन अच्छी? ना यूज अच्छे हमें दी polymers नेले, macromolecules नेले, हमें कहते polyethene. So ethene कौन? Ethene C, ethene molecule ना CH2 जदि polymer बनिबो, so ताको हमें double bond break करी कौन लिखुचे? polyethene को ताको empirical formula term रे केमते लिख परिबा? So this is the formula, that is the polyethene. So empirical formula कौन? CH2 bond CH2. So तार multiple है गला, multiply केते हला n times multiply हला. So that is polyethene. Okay. So it can be found out by knowing the percentage weight of all the constituent elements in the given compound. So हम पाके जहाँ भी element अच्छी, तार percentage weight नहीं कि हमें तो calculate करीबा. So next page रे हमें discuss करीबा how to find the empirical formula, right? So for example glucose लिखा है जी, acetic acid लिखा है जी, और एटी कौन लिखा है जी? formaldehyde. So तीनटार आमे दी empirical formula नबा, तीनटार empirical formula कौन अच्छी? CH2O. but तीनटा को सेम ना डिफरेंट? तीनटा को डिफरेंट. ता माने empirical formula दीटा कंपाउंड रो सेम ही पारे, बट कंपाउंड दीटा सेम हेबेनी.
बुझिपार इंपिरिकल फॉर्मूला सेम हो पारे बट कंपाउंड टा केबे भी सेम हेबेनी सो इंपिरिकल फॉर्मूला यूज करिकि आमे सिंपलेस्ट वे रे ताकू रिप्रेजेंट करूचे राइट नाउ बिफोर गोइंग टू कैलकुलेट द इंपिरिकल फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट आउ किछि आमे सिंपल फॉर्मूला देखिबा जेमते हम कहले ग्लूकोज रो इंपिरिकल फॉर्मूला कोन CH2O तार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोन C6H12O6 राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ला C6H12O6 इंपिरिकल फॉर्मूला ला CH2O जदि हम दुईटार मास को डिवाइड करिवा जदि हम दुईटार मास को डिवाइड करिवा ताले कोन हबो ना इट विल बी 6 सो 6 कोन दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो 6 रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो बुझा पड़ला ताले आमे दी कोन लिखिबा ना लिखिले मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट दैट इज इक्वल टू n इज एनी नंबर n डज नॉट रिप्रेजेंट मोल हियर n इज एनी नंबर सो एनी नंबर माने सेटा रेशियो को रिप्रेजेंट करूची राइट ताले आमे दी लिखिबा एमती मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला n बुझी पारलो जेमते हम पॉलिथिन पे लिखिले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला n सो इंपिरिकल n टाइम जब मल्टीप्लाई कर दवा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके अच्छा अनदर छोट कॉन्सेप्ट बट सेटा दरकार हुए इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन बेले दरकार हुए वेपर डेंसिटी सो तुम जानथिबो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी बट वेपर डेंसिटी कौन डोंट बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी डिफरेंट वेपर डेंसिटी डिफरेंट ताले वेपर डेंसिटी कौन ना वेपर डेंसिटी इट इज द रेशियो बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन molecular weight of the molecule divided by molecular weight of hydrogen. So what is the molecular weight of hydrogen? The hydrogen has the molecular weight 2. ता माने आमे molecular weight of the molecule divided by 2 equal to vapor density और molecular weight equal to 2 into vapor density. Okay, so ये formula आमरो कोठी ना कोठी आगु को यूज करा जिवो. Right students? Okay. So now we are going to discuss the steps by which the empirical formula can be calculated. जदि आम पाखे कौन अच्छी आम पाखे जदि अच्छी percentage weight of the element present in the compound ताले हम से percentage weight को यूज करिके हमें empirical formula केमती calculate करिबा. ओके सो किछि स्टेप्स अच्छी आम स्टेप्स आगे डिस्कस करिबा तापर मु 3-4 एग्जांपल तुमको देबी गोटे जेई मेन क्वेश्चन भी अच्छी तापर हम लास्ट को तुमको 5टा असाइनमेंट क्वेश्चन देबी जोटा तुम निज सेल्फ प्रैक्टिस में यूज हम आज एति करदेव स्टूडेंट इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन आसो जेई हो नीट हो कि तुम स्कूल एग्जाम हो किसी भी केबे डिफिकल्ट हेनी बुझिपार. सो फर्स्ट आम स्टेप्स डिस्कस करवा तापर आम नेक्स्ट कौन ना क्वेश्चन डिस्कस करवा तापर गोटे प्रीवियस जेई मेन क्वेश्चन डिस्कस करवा देन नेक्स्ट आम वाइंड अप करवा विथ सम प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम 5टा प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे फर्स्ट स्टेप देख ना यू हैव टू राइट the name of the element with the percentage composition. First कौन you have to write the symbol of the element with the percentage composition. Okay, this is the first step. Second step जहाँ भी तुम्हारा percentage composition देइछि ताकू से element रो respective atomic weight रे divide करिया पड़िबो. Suppose कार्बन देइछि x%, हाइड्रोजन देइछि y%, ताले हम कोन करे सेकंड स्टेप रे x by कार्बन atomic weight 12, y by हाइड्रोजन atomic weight 1. This second step. अच्छा आम जो डिवाइड कले आम कौन कहले परसेंटेज देइछि दुईटा एलिमेंट कि 3टा कि 4टा जहाँ भी एलिमेंट देइथिबो परसेंटेज देइछि परसेंटेज को आम डिवाइड कौन कले ना रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट डिवाइड कले. सो एटॉमिक वेट डिवाइड कला परे नेक्स्ट कौन हम किसी तो वैल्यू मिलिबो किसी जरूरी नहीं सब जगह होल नंबर मिलिबो किसी वैल्यू मिलिबो जहाँ भी तुम वैल्यू मिलिबो से वैल्यू कौन करवा ताते देखिए सब स्मॉलेस्ट नंबर कोटा सपोज 3टा वैल्यू अच्छी कि 4टा वैल्यू अच्छी ताते देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कोटा जोटा भी स्मॉलेस्ट नंबर थी से स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करवा बाय all the elements will be divided by the smallest number obtained in the second step. बुझी पारलो. So divide each number obtained for the respective elements in step 2 by the smallest number among them. देख पाछ स्टूडेंट by the smallest number among them हैला. अच्छा आम क्वेश्चन डिस्कस कला परे आउ टिके क्लारिटी आसीबो एबे खाली तुम स्टेप्सटा एक्सप्लेन कर दउची. नेक्स्ट जहाँ भी तुम नंबर मिलिबो डिवाइड कला परे स्मॉलेस्ट नंबर को हम डिवाइड कले सब नंबर डिवाइड कले बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. सो जहाँ भी तुम नंबर मिलिबो से नंबर होल नंबर हो पारे कि फ्रैक्शन हो पारे. सो फर्स्ट देखिबा
से होल नंबर अच्छा कि जदि से होल नंबर अच्छा किसी चिंता करिया दरकार नहीं ताको राइट साइड रे सबस्क्रिप्ट रे से नंबर को लिखिदेवा दैट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला बुझिपार राइट साइड रे सबस्क्रिप्ट रे से नंबर को लिखिदेवा दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला जदि होल नंबर नाही ताहले कोन करिवा ताले देखो फोर्थ स्टेप इफ ऑल द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 इज नॉट अ होल नंबर देन जदि हमर फर्स्ट कोन हैला इज नॉट द होल नंबर देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द अच्छा इज द होल नंबर देन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी रिटन बुझे पड़ला जदि होल नंबर थी ताहले मते को जेमति कहली राइट सबस्क्रिप्ट ताको लिखिदेवा जदि होल नंबर नथिबो आमे सिंपलेस्ट रेशियो नौच माने से सब होल नंबर आसवा दरकार जदि होल नंबर नथिबो ताहले जहाँ भी नंबर ऑब्टेन्ड हेतिबो स्टेप 3 रे सब नंबर को आम गोटे स्मॉलेस्ट सुइटेबल नंबर मल्टीप्लाई करिवा कोन कहली स्मॉलेस्ट सुइटेबल नंबर सपोज तुम आसी 1.33 सो स्मॉलेस्ट सुइटेबल नंबर केते 3 मल्टीप्लाई करिवा सो दैट 3.99 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 ताने नहीं 1.33 आसो ना आम 100 मल्टीप्लाई करदे 100 मल्टीप्लाई कले भी 133 आसो बट दैट इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 1.33 अच्छे मैंने 3 1.5 अच्छे मैंने 2 रे मल्टीप्लाई कले ओके सो इफ एनी नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 इज नॉट होल नंबर देन मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बाय अ सिंपल सुइटेबल इंटेजर टू गेट होल नंबर रेशियो दिस रेशियो विल बी द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो क्लियर so these are the steps we have to follow while writing the empirical formula of the compound okay so now let us go to the example this is one of the example see first quickly question dekhi dio so question deichi a carbon compound on analysis gave the following percentage composition carbon 14.5 hydrogen 1.8 chlorine 64.46 and oxygen 19.24 कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ओके ताले फर्स्ट कौन फर्स्ट स्टेप मन पकाओ जहाँ भी एलिमेंट देछि एलिमेंट सिंबल लिखिबा आउ तार परसेंटेज कंपोजिशन सो कार्बन 14.5 हाइड्रोजन 1.8 क्लोरीन 64.46 ऑक्सीजन 19.24 लिखिदेले परसेंटेज कंपोजिशन नेक्स्ट स्टेप ना ऑल द परसेंटेज कंपोजिशन विल बी डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट सेठी कौन रहिला 14.5 बाय कार्बन 12 1.8 by hydrogen 1, 64.46 by chlorine 35.5 and 19.24 divided by oxygen 16. So तुम कौन मिलला ना डिवाइड करला पर 1.21, 1.8, 1.81, 1.2 ये नंबर्स मिलला जहाँ भी नंबर मिलला थर्ड स्टेप रे कौन करिवा से नंबर भीतर सबटो स्मॉलेस्ट नंबर कोटा आमे तक आइडेंटिफाई करिवा स्मॉलेस्ट नंबर कोटा आसिला 1.2 बुझी पारलो से 1.2 को आमे सब नंबर रे डिवाइड करिवा सो 1.21 by 1.2 1.8 by 1.2 1.81 by 1.2 1.2 by 1.2 ताले कोन आसिला ना 1 1.5 1.5 1 ताले जो स्टेप 3 जो नंबर्स मिलला ये कोन होल नंबर की ना सब जाक होल नंबर नुहे जदि सब जाक होल नंबर हिथांते ताहले आमे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखि दिथांते सो सब होल नंबर नुहे जदि सब होल नंबर नुहे हमको होल नंबर फाइंड आउट करबा पड़िबो केमिति फाइंड आउट करबा ना स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करवा स्मॉलेस्ट नंबर ये कौन हम दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर 2 हम सो 1 into 2 1.5 into 2 1.5 into 2 and 1 ताले कौन आसिला 2 3 3 2 बुझी पारलो ताले कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 3 and ऑक्सीजन 2 ताले एम्पिरिकल फार्मूला कौन है कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 3 ऑक्सीजन 2 सो फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला C2H3Cl3O2 this is the empirical formula बुझा बोला स्टूडेंट okay now you can take the screenshot also now we can go to the next question yes या गोटे क्वेश्चन अच्छी ये क्वेश्चन में कौन अच्छी देखो a compound contains carbon 71.23 hydrogen 12.95 and oxygen 15.81 what is the empirical formula of the compound okay so first देखो आमे लिखिले कार्बन कार्बन केते 12 देन हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास आ ऑक्सीजन हला 16 सो परसेंटेज वेट केते अछि कार्बन 71.93 हाइड्रोजन 12.95 ऑक्सीजन 15.81 तबे टेबल फॉर्म में लिखि परबो नले मु जोटा प्रीवियस फॉर्म दीटा को देली ऑप्शन
क्या किसी स्टूडेंट को टेबुल फॉर्म रे भल लगे किसी स्टूडेंट को सेमती डिवाइड करे भल लगे तुमको जोटा सुइटेबल लगो लिखिपर बट फाइनाली अल्टीमेटली द आंसर विल बी सेम आंसर डिफरेंट न आसवा दरकार राइट। अच्छा ताले हमें कौन कहले ना रिलेटिव नंबर केमती कैलकुलेट करवा ना परसेंटेज वेट डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर सो डिवाइड कले 71.93 डिवाइडेड 12 12.95 डिवाइडेड बाय 1 15.81 डिवाइडेड बाय 16 से केते आसिला 5.936 12.95 0.988 ये नंबर आसिला आ भितर स्मॉलेस्ट नंबर किए को स्मॉलेस्ट नंबर इज को नंबर आसिला दे स्मॉलेस्ट नंबर दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर 0.988 तो ताले नेक्स्ट स्टेप रे कोन करबा जहा तीनटा को नंबर अछि तीनटा को नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर रे डिवाइड करबा सो 5.936 डिवाइडेड बाय 0.988 देन 12.95 डिवाइडेड 0.988 देन 0.988 डिवाइडेड बाय 0.988 ताले कोन आसिला 6 13 1 ताले एम्पिरिकल फार्मूला कोन आसिला C6H13O ओके सो एम्पिरिकल फार्मूला इज C6H13O बुझिपार सो सेम सेम स्टेप्स फॉलो करचे आउ गोटे क्वेश्चन आम डिस्कस कले नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन ये क्वेश्चन टिके आधे कौन नहीं नामर मॉलिक्यूलर वेट भी देछि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पचारछि सो तमें जो डिफरेंट वेराइटर क्वेश्चन मुझे कहते डिफरेंट वेराइटर क्वेश्चन जहाँ भी आसो सब जन तुम अटेंड कर ओके ताल देख कौन देछि ये क्वेश्चन टिके डिफरेंट अच्छी जोटा कि तुमको डिफरेंट वेराइटर क्वेश्चन ट्राई करवा दरकार कारण कौन सी एग्जाम क्वेश्चन केवे रिपीट होनी सो कंपाउंड ऑन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन contains these elements in the ratio 9:1:3.5 calculate the empirical formula if the molecular mass is 108 what is the molecular formula clear okay so 9:1:3.5 so 9 represents carbon 1 represents hydrogen 3.5 represents nitrogen so जदि आम रेशियो देछि आमे ता कोन नै परिबा ना कार्बन 9x हाइड्रोजन x and nitrogen is 3.5x नेले so तांका रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट 12 1 14 क्लियर ताले आमे देखिबा जो 9x डिवाइडेड बाय टोटल केते हला 9 + 1 + 3.5 13.5x so it is coming 0.75 then it is 1 then 3.5 divided by 3.5x divided by 14 that is 0.25 ताले को अंक भितर सबटा स्मॉलेस्ट नंबर किए ना स्मॉलेस्ट नंबर इज 0.25 तो आम कौन करवा ये स्टेप रे जहाँ नंबर मिली सब जाक डिवाइड करदे केते डिवाइड केते करवा ना स्मॉलेस्ट नंबर 0.25 सो 0.75 डिवाइडेड 0.25 3 1 by 0.25 4 0.25 by 0.25 that is 1 ताले एठी आसिला कोन कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 and oxygen nitrogen 1 carbon 3 hydrogen 4 and nitrogen 1 so empirical formula is this और हम लिख परिवा C3H4N empirical formula अच्छा आउ कोन देछि नाटी पचारछि मॉलिक्यूलर मास जदि 108 ताले तार मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन हबो सो मॉलिक्यूलर आमे जानछे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड एम्पिरिकल फार्मूला मास इक्वल टू n ताले n केते हबो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अछि 108 एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करो C3H4N so empirical formula mass is coming 54 so 108 by 54 that is coming 2 ताले empirical formula जदि अछि C3H4N ताले molecular formula कोन हबो 2 so that is molecular formula is coming C6H8N2 C6H8N2 बुझा पड़ला ये ला गोटे हुए अच्छा आउ गोटे आम सर्टकट वे रे भी आपको सॉल्व करि परिबा ताले केमि सॉल्व करिया को शॉर्टकट वे रे ना जदि हम देछि टोटल एमति कहले 9x + x + 3.5x रेशियो टोटल केते हला 13.5x इक्वल टू तम रेशियो तम एम्पिरिकल फार्मूला नियो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जदि x मल्टीप्लाई करछे दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट सो इट इज कमिंग 108 ताले x केते हबो ना x इज दैट इज 8 108 को 13.5 रे डिवाइड करो यू विल गेट द वैल्यू 8 ताले कार्बन केते कार्बन हला 9x दैट इज 72 हाइड्रोजन हला x दैट इज 8
नाइट्रोजन है 3.5x दैट इज इक्वल टू 28 ताले कार्बन 72 सो कार्बन जदि 72 अच्छी ताले कह स्टूडेंट कार्बन रो केते हबो कार्बन 72 माने कार्बन हो गला 8 देन ना 6 हबो कार्बन 6 हबो ओके सो 12 72 by 12 that is 6 then next कौन आसो हाइड्रोजन 8 अच्छी माने हाइड्रोजन 8 रहा नाइट्रोजन 28 by 14 नाइट्रोजन 2 दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला जदि मॉलिक्यूलर फार्मूला एटा मिलला ताले हमें एम्पिरिकल फार्मूला केन फाइंड आउट करबा सिंपलेस्ट रेशियो C3H4n दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला C3H4n सो तुम पाखे दुईटा अच्छी सो सेकेंड मेथड मुझे जोटा कहली से सर्टकट मेथड आउ फर्स्ट मेथड है आम ट्रेडिशनल मेथड तुम जो मेथड सुइटेबल लगे तुम से कर सो क्विकली आम गोटे प्रीवियस ईयर जेई मेन क्वेश्चन नहीं ओके सो प्रीवियस ईयर जेई मेन क्वेश्चन नहीं ताको आम क्विकली डिस्कस करवा स्टूडेंट्स देखो देखिए 3.9 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्शन गिव्स 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर ताले कंपाउंड जो देछि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ता माने डेफिनेटली द कंपाउंड कोन हेतिबो गोटे हाइड्रोकार्बन हेतिबो ताले यदि हाइड्रोकार्बन नेले राइट आम यदि गोटे हाइड्रोकार्बन नेले सो हाइड्रोकार्बन जानी नै आल्केन आल्किन आल्काइन किछि भी परिबो सो हम नै परिया CXHY यदि कंबस्शन हबो दैट विल गिव XCO2 एंड Y/2 H2O बुझा पड़ा XCO2 प्लस Y/2 H2O ताले हम तो बैलेंस करवा बैलेंस कले कौन हम ना ये दरकार ही नहीं बट बैलेंस कले x प्लस Y/4 O2 ताले देखो ये देछि 3.9 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सो दिस इज 3.9 ग्राम तापर कौन ना 13.2 ग्राम ऑफ द CO2 सो ये 13.2 ग्राम एंड दिस इज 2.7 ग्राम बुझा पड़ा ताले नेक्स्ट टाइम कौन करवा ना नंबर ऑफ मोल्स केते हबो और x वैल्यू केते हबो नंबर ऑफ मोल्स x वैल्यू नहीं परिबा 13.2 डिवाइडेड बाय 44 एठी y/2 रो वैल्यू केते हबो 2.7 डिवाइडेड बाय 18 बुझा पड़ा ताले x एंड हमें एठी सॉल्व करवा सो सॉल्व करले हमें x एंड y रो वैल्यू मिल जिवो जदि x एंड y रो वैल्यू मिलिबो सो हमें कौन करवा सेउठ हमें एम्पिरिकल फार्मूला इजीली कैलकुलेट करि परिबा ताले को 13.2 डिवाइडेड बाय 44 केते आछि ना इट इज कमिंग 0.3 आ ये केते आछि y/2 केते आछि ना 0.15 ताले y केते हबो ना 0.15 इंटू 2 0.3 ताले x एंड y रो वैल्यू इक्वल हे गेला हमें कोन कहते एम्पिरिकल फार्मूला दरकार अछि सो CX है 0.3 दैट इज इक्वल टू y सो हमें लिखते CXHY सो दैट विल बी CH कहीं दुईटा जब इक्वल हो गला देन कौन हम ना आम कैंसल हो सो कैंसल तो इंपीरियल फार्मूला कौन है CXHY और CH बुझा पड़ा सो यही टाइप क्वेश्चन आमर प्रीवियस जेई मेन नीट रे बहुत थर आसी स्कूल एग्जाम रे बहुत आसूची बुझीपार सो आई होप जे आम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन नेले जोटा इंपीरिकल फार्मूला को बेस कर क्वेश्चन आसूची तो आम डेफिनेटली हेल्पफुल हम आम नेक्स्ट किसी मुझे तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देछि तमे चाहिए आपको क्विकली नोट करि परिबो और स्क्रीनशॉट नेकी तमे यूज करि पर पांचटा प्रैक्टिस क्वेश्चन देछि जोटा कि तमरो इंपीरिकल फार्मूला आ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर आ क्वेश्चन तमे सॉल्व कला परे तमरो हेल्प पई मु तुमको आंसर भी दे देछि सॉल्व कला परे आंसर देखियो आगो आंसर देखियो नहीं सॉल्व करियो पांचटा क्वेश्चन आगो सॉल्व करियो तापर आंसर मैच करियो यदि आंसर मैच होतिबो देन तुम कनसेप्ट बुझीपार जदि आंसर मैच न कर आउ थे वीडियो को रिवाइंड कर देखो तापर क्वेश्चन सॉल्व कर से 5 स्टेप को देखो ओके स्टूडेंट्स सो आई होप क्विकली तुम देखी दियो क्वेश्चन अच्छा आई होप कि आज जो छोट कनसेप्ट डिस्कस कले दैट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर फाइंडिंग द इंपीरिकल फार्मूला ओके सो स्टूडेंट मुझे तो किसी वीडियो बनाऊँ तुम मानी आदि तुम मैंने चाहूच जे किसी एक्सट्रा वीडियो बनवाई तुम पसंद वीडियो बनवाई तो डेफिनेटली तले तुम कमेंट रे लिख आदि जो टॉपिक उपरे अधिक स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे जे टॉपिक को आग वीडियो बना जाऊ तो डेफिनेटली मुझे टॉपिक को तुम मान भल निश्चय मु बनैबी आउ
तुम वीडियो देखा सहित जब तुमको भल लगुच तुम तुम नियर और डियर वन्स तुम फ्रेंड मान सहित ये वीडियो को शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द प्रभात केमिस्ट्री चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।